ले आसे रखे के यहोवा दी करेदा इंतजारी मैं सबरी देना ले आसे रखे के यहोवा दी करेदा इंतजारी तो तुसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सा पिया हो जारी तदुसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सा पिया हो जारी ओ खतरे दे टोए देखो बेआचू हे मैनू कट के ले आया बाहर ओ खतरे दे टोए देखो बेआचू हे मैनू कट के ले आया बाहर चट्टानू तेर के पैरे मेरे ते बख्शी कदमा नुस्तवारी चट्टानू तेर के पैरे मेरे ते बख्शी कदमा नुस्तवारी मैं सबरी देना ले आस रखे के यहोवा दी करेदा इंतजारी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तू होवे तारीफ उसदी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तू होवे तारीफ उसदी बतेरे मन गे खोफ उसदा ते आस रखने ते सारी बतेरे मन गे खोफ उसदा ते आस रखने ते सारी मैं सबरी देना आस रखे के यहोवा दी करेदा इंतजार मुबारकों से दाल जानो यहोवा उते परोसा जिसदा मुबारकों से दाल जानो यहोवा उते भरोसा जिस मंडिया को ओ नहीं जानदा ना झूठे आना ले रखदा यारी मंडिया को ओ नहीं जानदा ना झूठे आना ले रखदा यारी मैं सबरी देना ते आस रख के यहोवा दी करेदा इंतजारी यहोवा दी करेदा इंतजार आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मैं सबर ते नाल यहोवा दी करदा इंतजारी with patience I'm looking and waiting on the Lord बड़ा अच्छा ज़बूर बहन ने भाई ने मिलके गाया प्रभु का धन्यवाद हो अब हम अगला गीत सुनेंगे भाई राजेंद्र भाई आर के जोशुआ से भाई जोशुआ जी तुझे अपना गीत काट कर सकते हो और ब्लेस यू ठीक है ब्रदर सभी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को प्रेज द लॉर्ड प्रभु आप सभी के साथ हैं तो हम एक पंजाबी में गीत गाएंगे हाँ जी जरूर मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल
ਭਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਕਰਾਰ ਤੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਕਰਾਰ ਤੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਮਿਲ ਕਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਮਿਲ ਕਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਆਮੀਨ Amen. God bless you, brother. अपनी रूह दे नाल भरदे खुदा. This is a prayer of a believer who is asking Lord God to fill our heart, to fill us with His Holy Spirit, because the Holy Spirit has the power, and we need Holy Spirit to breathe, to have a breath for our life, and spiritual life especially. So God bless you, brother. Now we will hear a song by Sister Ripsim. Sister Ripsim, are you ready, sister? Yes, brother. Okay, sister, you can start your song. Sister Ripsim is going to sing a song in English. God bless you. And sister ने वो गाना already post कर दिया है. This song is "Do not wait until some deed of greatness you may do. Do not wait to shed your life apart." सिस्टर ने इंग्लिश में ये गाना ऑलरेडी मार्जिन में पोस्ट कर दिया है. हम इस गाने को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं. God bless you, sister. You may now start your song.
wait until someday the greatness you may do. Do not wait to shed your light afar. To the many duties ever near you now be true. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Just above our clouded skies that you may have to clear. Let not name yourself your way above. Though into one heart alone may pour your song of cheer. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. If for all your talent you may surely find the need, He reflects the bright and morning star. Even from your humble hand the breath of life may feel. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. God bless you all. Amen. Amen. God bless you, sister, for this wonderful, very inspiring song. This song is inspired by the scriptures that let your light shine in front of the world so that it will be a testimony and evidence that who is our God. Our God is light and we must reflect the light, and we should not be waiting for the opportunity. We should be always ready to brighten every corner around us. और हमारी ज्योति जो है वो संसार के आगे चमकनी चाहिए, और संसार को परमेश्वर जो ज्योति है उसकी ज्योति हमसे रिफ्लेक्ट होकर सारे संसार को पहुंचनी चाहिए। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छे गीत के लिए, फॉर दिस लवली सॉन्ग। नाउ विल हियर अ सॉन्ग बाय ब्रदर किशन। बाय किशन के द्वारा अब हम एक गीत सुनेंगे। बाय किशन, आप हिंदी में कि अंग्रेजी में, कौन सी भाषा में आप सुनाएंगे? मैं इंग्लिश में गाऊंगा ब्रदर। When the saints go marching in. When the saints go marching in, very lovely song. And by Kishan के द्वारा अब हम ये गीत सुनेंगे। You can start, brother Kishan. God bless you. आमीन। थैंक यू ब्रदर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गा रहा हूँ। आमीन। Yes. I'm a pilgrim and a stranger, wandering through this world of sin, on my way to that far city, when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in.
Oh, I know I'll see my Savior if my life is free from sin. Heaven's door will open for me when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be that number when the saints go marching in. When we gather round the throne and the gates are closed with him, I'll be shouting glory, glory when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. I am waiting for his return. He will come, I will step in. On the clouds I'll ride to heaven when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Amen. प्रभु सबको आशीष दे. Amen, amen. God bless you, brother. When the Amen. saints go marching in, यानी कि जब भी जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं, जब उसके राज्य में उस गेट से दाखिल होंगे, तो एक विश्वासी की प्रार्थना है कि मैं भी उस भीड़ में उन लोगों के साथ उस ग्रुप में शामिल होऊंगा, जिससे कि प्रभु के द्वार में, प्रभु के राज में जब शामिल होंगे सभी विश्वासी लोग, सभी संत लोग, तो एक विश्वासी की प्रार्थना है कि मैं भी उस ग्रुप में शामिल होऊंगा. हम सब की भी यही प्रार्थना है. गॉड ब्लेस यू फॉर दिस सॉन्ग, लवली सॉन्ग. और Sister Rebecca and Sister Renuka, God bless you for joining. Praise the Lord. आप दोनों को जय मसीह की. Praise the Lord, Sister Rebecca. जय मसीह. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord, Sister. Praise the Lord. Sister Renuka, आपकी तबीयत कैसी है? Sister Renuka, आपको आवाज आ रही है? सर ठीक है ब्रदर, अब मेरी तबीयत. ओके, चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो. गुड टू हियर दैट. प्रभु का धन्यवाद हो. और अभी आज फिर एक बारी फिर हमारे पास समय है कि हम प्रभु के लोगों के साथ इस मीटिंग में, इस सभा में शामिल हो सकते हैं. वंस अगेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी टुगेदर विद द फैमिली ऑफ गॉड. I know for last few weeks you have not seen me on this platform, and Brother Jaswinder has been handling alone on this thing. Maybe 1 or 2 times we did not have the meeting also. तो कुछ समय से आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं देख पा रहे थे और भाई जसविंदर इसको हैंडल कर रहे थे और एक दो मीटिंग भी हमें बीच में कैंसिल करनी पड़ी. बट वी आर ग्लैड दैट वी आर बैक एज नॉर्मल ऑन दिस प्लेटफॉर्म नाउ ऑन एवरी संडे. सिर्फ जो पहला संडे होता है उस दिन हमारी जो मीटिंग नहीं होती, क्योंकि उस दिन हमें पंजाब के जो भाई लोग हैं वहाँ पर लॉर्ड सफर होता है, तो टाइम क्लैश होने की वजह से पहले संडे को मीटिंग नहीं होती, यानी कि जो अगला संडे होगा. तो बट इन ऑल थिंग्स वी आर टुगेदर. क्योंकि मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए करीब 3-4 हफ्ते से बाहर था और मैं अमेरिका गया हुआ था अपनी बेटी के पास में, इसलिए मैं ज्वाइन, और टाइम डिफरेंस इतना होता है कि मेरे लिए ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल था. बट अब मैं वापस आ गया हूँ यूके में, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो. और अब हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और हम भाई राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे. इस प्रार्थना में हम इस मीटिंग को और सभी भाई बहनों को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं. हम में अगर कोई बीमार है, कोई कमजोरी है, कोई और लाचारी है, कोई दिक्कत है, प्रभु हम सबकी
प्रॉब्लम्स को जानता है, उन सबको हम प्रभु के सामने रखेंगे। और हर एक सदस्य के लिए जो कि यहाँ पर अभी शामिल है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। भाई राजेंद्र मसीह के साथ, ब्रदर राजेंद्र जी, यू कैन स्टार्ट द प्रेयर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। तो आइए सब लोग हम खुदावंद की हजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा। तू सच्चा जिंदा एक खुदा है और तेरे तुल्य कोई नहीं खुदावंद खुदा। तेरा नाम सब नामों तो उत्तम नाम है प्रभु जी। और खुदावंद तू राजियां दा राजा है और तेरी बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा, जो सच्चा पवित्र नाम साडे उत्ते जाहिर कीता है। और खुदावंद असी नहीं, तू अपने फजल दे वसीले नाल सानू चुनिया है। और खुदावंद इसलिए चुनिया है कि असी खुदावंद बहुत सारा फल लियाइए। और खुदावंद अपनी संतान होने का अधिकार दिता, तेरे शुक्रगुजार हां। और खुदावंद खुदा तेरे शुक्रगुजार हां। खुदावंद अंधेरे चों कढिया, रोशनी दी औलाद बनाया। खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। और इस सुंदर समय के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हां खुदावंद। इसलिए तू सानू इकट्ठा किया कि असी सदा तेरी महिमा करिए, तेरे नाम नूं जलाल दईए, क्योंकि खुदावंद सारी आदर महिमा और जलाल दे योग्य तू खुदा है। और खुदावंद तेरे वादियां नूं याद करदे हां, तू कहा जिथे भी 2 या 3 पूरी आत्मा और सच्चाई नाल मैनूं पुकारनगे, बंदगी करन, खुद उत्थे मौजूद होवांगा। सचमुच जदों पूरी आत्मा और सच्चाई दे नाल तैनूं पुकारिया जांदा है और तेरी बंदगी हुंदी है, तू उत्थे मौजूद हुंदा है। और प्रभु जी खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, जो प्रार्थना नूं सुनदा और जवाब दिंदा है, क्योंकि तेरियां अखां और तेरे कन सदा तरमी जांदियां दुआवां वल लगे रहिंदे ने। प्रभु जी कृपा कर प्रभु जी, जो भी साडे विच कमियां कमजोरियां पईयां जांदियां ने, अपने वचन दे वसीले नाल और अपने पवित्र लहू दे वसीले नाल दूर करने वाला परमेश्वर है। ईमान विश्वास की तकड़ाई देना खुदावंद खुदा, तेरा पवित्र आत्मा सानू गाइड करे प्रभु जी। और खुदावंद होन दे खुदावंद खुदा, साडा पहला प्रेम तेरे नाल होवे प्रभु जी। और दुनिया की कोई भी चीज सानू तेरे प्रेम तो लग ना कर पवे प्रभु जी। हिम्मत और ताकत दे, जब तक असी जमीन ते रहिए, तेरी महिमा करिए, तेरे आज्ञाकार होइए, तेरे नाल सीरियस होइए प्रभु जी। तू सामर्थ दा खुदा है, जो कम खुदावंद इंसान नहीं कर सकता, तू करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद असी विश्वास करते हैं तू सब कुछ कर सकता है। तो प्रभु जी जिन्ने भी ब्रदर सिस्टर ने जो मीटिंग पे, सब पे तेरा फजल वाला हाथ हमेशा बनया रहे। कमियां कमजोरियां उठा ले, कलाम च अगे वधाना, अपनी आमद लई तैयार करना, तैयारी वाला मसा दे। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, तू बेहतर जानता है, हर बीमारी उठाने वाला तू परमेश्वर है। उस ब्रदर सिस्टर नूं शिफा दे, और चंगियाई पावे, तेरे नाम दी महिमा करे प्रभु जी। और खुदावंद अज दी कलाम लई ते तू मंगदे हैं जो खुद हैं। खुदावंद अपने सेवक दे द्वारा साडे नाल गल कर, उस कलाम दे द्वारा साडियां सारियां कमजोरियां दूर हो जान। और खुदावंद असी उसते बहुत सारा फल लियाइए, सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले होइए प्रभु जी। और प्रभु जी अपने सेवक दे होठां नूं छू के पवित्र करना प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा होवे खुदावंद खुदा। जो बच्चा ट्रांसलेशन करे उसदे भी नाल होना प्रभु जी, आशीष बरकतां नाल भर देना प्रभु जी। सारी जूम मीटिंग नूं तेरे हवाले करदे हां प्रभु जी, तेरी महिमा होवे, सिर्फ तेरे नाम नूं जलाल मिले। और आने वाले समय च भी प्रभु जी, जदों भी असी एक दूसरे नूं मिलीए, सब दे लिए आशीष बरकत का कारण बनी, और सदा तेरा धन्यवाद करिए, तेरी महिमा करिए। सारी जूम मीटिंग नूं तेरे हवाले करदे हुए प्रभु यीशु, सारा कुछ मंग लेने तेरे पवित्र जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। और प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है, हम सब ने आमीन कहा, एक ही विश्वास में, एक ही आत्मा में होकर के। Now is the time that we should spend some time in reading and hearing and meditating on the Word of God and learning from the Word of God, that we have to see what the Spirit of God wants to speak to us, to give us
the spiritual manna and the spiritual food for today for all of us. Bhai Jaswinder Singh Tyaro, are you ready with your translation and recording, brother? जी भाई जी रेडी हैं. Thank you. Thank you. So greetings to all brothers sisters in Jesus' holy name for this morning again. आज की सुबह में सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूँ. And this is once again, we are all very happy to come together in the name of Lord Jesus Christ as one family in one spirit to praise God, to pray to God, and to also hear from His word. और आज की सुबह हम बहुत खुश हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक मन एक आत्मा में उसकी महिमा के लिए, उसके कलाम के लिए इकट्ठे हुए हैं. And He has given us once again this opportunity while we are still on this earth. और प्रभु ने हमें फिर से ये अवसर दिया है कि हम इस धरती पे हैं और उसका मनन करें. There are many who have gone from here. और बहुत सारे लोग चले गए हैं ज़मीन से. God knows the timing for everyone. सिर्फ प्रभु जानता है हर किसी के समय के बारे में. If He has kept us here, He has a reason, He has a purpose. अगर उसने हमें ज़मीन पर रखा है तो उसका कोई ना कोई मकसद है. But the Lord always wants to have fellowship with us. लेकिन प्रभु हमेशा चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें. When He created mankind in His own image, He had this intention that God should have fellowship with us. और ताकि हम हर एक प्रभु के साथ संगति करें. God wants to be with us. God wants to stay with us. God wants to talk to us and have fellowship with us. और प्रभु भी हमारे साथ रहना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, हमारे साथ बना रहना चाहता है. And He is not happy when we go away and that fellowship is broken. और वो खुश नहीं होता जब हम उससे दूर चले जाते हैं और उसकी संगति से दूर हो जाते हैं. Because when He calls us His children, the parents, the father always wants to have the children next to him, near to him. क्योंकि जब भी वो बुलाता है तो वो अपने बच्चों को, माता पिता हो और अपने बच्चों को चाहता है कि वो पास हों. And children also feel very safe when they are with their parents, their father and the mother. और बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जब वो अपने माता पिता के साथ होते हैं. Now we have a physical father and the mother on this earth. और जैसा हमारे संसारिक भी माता पिता हमारे साथ हैं, More importantly and more securely, we have our Heavenly Father. He is our father and mother, both spiritually. और सबसे ज़्यादा ये बात है कि प्रभु परमेश्वर जो कि हमारा पिता भी है और हमारी माँ भी है. And God is spirit. परमेश्वर जो है वो आत्मा है. And He is with us. This is His promise that I will be with you and in you until the end of the age. और उसने ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ युगों युग तक, यहाँ तक कि इस युग के अंत तक भी तुम्हारे साथ रहूँगा. But we should always realize that He is around us. और हमें हमेशा ये महसूस करते रहना है कि वो हमारे आसपास है. We have to give thanks to Him that He is with us. We have to speak to Him. और हमें उसका धन्यवाद करना है कि वो हमारे साथ है और हमें उससे बात करनी है. He is always happy when there is a communication we do with our Father. और वो खुश होता है जब हम अपने पिता से बात करते हैं. In the first book of the Bible, Genesis, और पवित्र बाइबल की जो पहली किताब है, जो उत्पत्ति है, we read there that when God put Adam in the Garden of Eden, यहाँ प्रभु परमेश्वर ने आदम को बाग अदन में रखा. and He also made one helper for him, one company for him, his wife called Eve. और प्रभु ने उसके लिए एक मददगार जो कि पत्नी के रूप में, साथी के रूप में दिया. And they were living happily in the Garden of Eden. और वो खुशी खुशी बाग अदन में रहते थे.
And Bible says that in the evening, in the cool of the evening, the Lord God always visited them. और बाइबल में लिखा है कि शाम के समय में प्रभु उनसे मिलने आता था। God was in constant touch with them. प्रभु लगातार उनके साथ संगति में था A good fellowship was continuing and everything was going well. और एक अच्छी संगति चल रही थी। Everything was so blessed. हर चीज आशीषित थी, Unless the time came when the devil came and interfered with that peace. जब तक वो शैतान वहाँ आया और उसने दखल अंदाजी की And the fall came for the man and the women both. और आदम और हवा दोनों फिर गिरावट में चले गए। The devil beguiled and deceived the woman, और शैतान ने हवा को बरगलाया and the woman had fallen, और हवा जो थी वो गिर गई and she came and shared that thing with her husband, Adam, उसने वही चीज़ें जो थी वो आदम के पास गई और उसके साथ साझी की। she shared the unbelief which was created in that woman by the serpent, जो शैतान के द्वारा अनविश्वास पैदा किया गया था हवा में। the sin was conceived as unbelief, जो पाप का बीज बोया गया वो था अनविश्वास and it resulted in some actions, और वो कार्य में भी साबित हुआ। and she shared everything with her husband. उसने वो सारी चीज़ें आदम के साथ शेयर की Her husband listened to her और आदम ने भी उसकी सुनी because naturally he loved her. क्योंकि कुदरती तौर पर वो उससे प्रेम करता था। She was taken out from that man. उसने आदम से उससे दूर किया, But because of that love, he listened to that woman, क्योंकि उस प्रेम के कारण उसने उसकी सुनी, not realizing that that is not the word of God. उसने ये नहीं जाना कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है। We have to remember that we can love the people around us, और हम जानते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम रखते हैं, but we must realize that God comes first. लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु पहले है। It can be my father, mother, my wife, my children, my friends, many things in the life. हमारे जीवन में वो कोई भी हो सकता है, माँ बाप भाई बहन हमारा जीवन साथी, But God comes first. लेकिन परमेश्वर पहले स्थान पर। God has the priority in our life in all things. और परमेश्वर हमारे जीवन में हर स्थान पर पहली जगह होना चाहिए। If our relationship with God is good, then everything will go good. अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो फिर सारे रिश्ते अच्छे होंगे। Even if the problems come, the God will help us in those problems. अगर हमारे जीवन में कुछ समस्याएं भी आती हैं तो परमेश्वर उनका निवारण करेगा। This is very important part, brothers and sisters. ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। Now, when God saw that Adam and Eve they have become disobedient and fallen into sin, जब परमेश्वर ने देखा आदम और हवा अनाज्ञाकारी हो गए हैं और पाप में वो गिर गए हैं, the relationship between God and man was broken. जो रिश्ता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो खत्म हो गया। God was not happy about it. परमेश्वर इससे खुश नहीं था, But because he is God, लेकिन वो परमेश्वर है, he knew this is going to happen. वो ये भी जानता था कि ये होगा, And he knew when it is going to happen and how it is going to. वो ये भी जानता था ये कब होगा और कैसे होगा, And he knew who is the evil angel who is going to create this problem. वो ये भी जानता था कि ये कौन सा वो फरिश्ता है जो ये करेगा, And this exactly happened. और ये इसी तरह ही हुआ। But God is always a loving God. लेकिन प्रभु हमेशा से प्रेम करने वाला प्रभु है। He gives us many opportunities to mankind so that we should correct ourselves
and come back in our relationship with God. उसने बहुत सारे ऐसे अवसर दिए कि जो है आदम और हवा वो अपने आप को ठीक करें और वापस आ जाएं। How many times he has given chances to Israel and how many times he has given chances to us. उसने देखिए कितने सारे मौके इजराइलियों को दिए और कितने सारे मौके हमें भी देता है, Because he is loving God. क्योंकि वो प्रेम करने वाला प्रभु है। He does not want that we should go to hell. वो कभी नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। He did not create hell for mankind. ना ही उसने वो नरक हम मनुष्यों के लिए बनाया था। He created hell for the fallen angels. उसने वो नरक जो था उन गिरे हुए फरिश्तों के लिए बनाया था। And angels had fallen before man had fallen. और जो फरिश्ते पहले गिरे थे जब बाद में मनुष्य गिरा। The angels were created in heaven before on earth man was created. इससे पहले मनुष्य धरती पे बनाया जाता, वो फरिश्ते बनाए गए थे। Human being was only created on earth. मनुष्य जो था वो इस धरती पर बनाया गया। We know by the history of creation in the book of Genesis. हम उत्पत्ति की किताब में सारी रचना के बारे में जानते हैं। There is no description of man or mankind or man-like creature before the earth was formed. यहाँ पर कोई भी ऐसा कलाम नहीं लिखा हुआ कि जो धरती से को बनाने से पहले मनुष्य बनाया। But we know from Bible itself that angels were created before even earth was formed. और ये लिखा है कि फरिश्ते तब बना दिए गए जब धरती नहीं बनी थी। And the first sin was created by the fallen angel in heavens. और जो पहला गुनाह हुआ था वो उन फरिश्तों के द्वारा हुआ जो गिरा दिए गए। And he was thrown down from heavens and he came back to earth. और वो गिरा दिए गए और वो जमीन पर आए। Some are hanging in the heavens, in the air. और कुछ हवा में हैं। And some spirits are working through the mankind and trying to deceive the people. और उनमें से कुछ हैं जो मनुष्यों को खराब करते हैं। These all spirits are against God. ये सब जो हैं परमेश्वर के खिलाफ है। God knew everything. प्रभु सब जानता है। But God is not allowing, God is not designing this to happen. लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया था। He did not push us to commit sin. उसने ना ही हमें जबरदस्ती करी कि हम गुनाह करें। He warned us that if we do this, this will happen. उसने हमें चेतावनी दी थी कि अगर तुम गुनाह करोगे तो ये सजा भुगतोगे। The biggest loss a mankind suffered after committing sin, that our relationship with God, our connection with God was broken. जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ हमारा वो ये था कि गुनाह के बाद हमारा और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। Because of his love for his creation, the man, क्योंकि उसका प्रेम जो था अपनी रचना के साथ था। he had known it from before that this is going to happen. वो बनाने से पहले ही जानता था। So he made a plan ready for our redemption. इसलिए उसने वो योजना भी बना ली हमारे छुटकारे की। But he gave us a choice to follow and be a part of that plan. लेकिन उसने हमें ये मौका दिया चुनाव करने का। That is what we read in John 3:16. जो हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं। That he loved the world. उसने संसार से प्रेम किया। He gave as a redeemer his son. उसने छुटकारे के तौर पर अपने पुत्र को दिया। But then he says, whosoever will believe. लेकिन उसने लिखा कि जो कोई भी विश्वास करेगा, He will not perish, but he will have eternal life. वो बर्बाद नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। So the word whosoever means जो लिखा है कि जो भी संसार में जो भी, somebody has to make a choice. कि उस व्यक्ति के पास चुनाव करने की पूरी आजादी है। Because the verse does not say that everyone will believe and will have everlasting life. ये नहीं लिखा कि हर कोई
ये लिखा है जो कोई भी, whosoever. जो कोई भी। The choice is not God's, choice is ours. ये जो चॉइस दी है, अवसर दिया है, ये मनुष्यों के पास है अवसर। God did not make hell for man. प्रभु ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, But if the man make a wrong choice with devil, then man will go to hell. लेकिन अगर मनुष्य ही गलत रास्ता चुनता है तो वो नरक जाता है। This is not the fault of God. This is our fault. ये परमेश्वर की गलती नहीं, ये मनुष्यों की गलती है। So God never wanted that we should be disconnected from God. तो प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि हम जो हैं प्रभु से रिश्ता तोड़ दें। God always wants to live with us, talk to us, love us, and show himself to us. प्रभु ने हमेशा अब दिखाया कि वो प्रेम करता है, हमसे जुड़ा रहना चाहता है। God showed that he loves us by John 3:16. उसने वो अपना प्रेम यूहन्ना 3 और उसकी 16 आयत में बताया। He gave us the love in the physical form, in the form of his son. उसने अपना प्रेम एक शरीर के रूप में अपना प्रेम बताया। The Almighty God, who is the Spirit, जो महान प्रभु परमेश्वर आत्मा है, he gave himself a human body, उसने एक शरीर दिया, and that body was called Jesus Christ. उस शरीर को प्रभु यीशु मसीह बोला गया। That Son of God is called Jesus. जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है। And in the Old Testament, पुराने नियम में before he became flesh, इससे पहले वो शरीर लेता, he is the Word of God, वो परमेश्वर का वचन है, the Logos. लोगोस है। The Logos and the Word of God was always with God, John 1:1. जो ध्वनि है, लोगस है, जो वचन है, ये दोनों सब परमेश्वर के साथ है। यूहन्ना 1:1 And बताया। God created this world, God created this creation only by this word, by this word, the spoken word, Logos. परमेश्वर ने जो सारी कायनात बनाई है वो अपने मुख से बोले हुए वचन से बनाई है, And by him and for him. और परमेश्वर ने इस धरती के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए बनाई है। So this is the plan of God. ये परमेश्वर की योजना है। But man has not been thankful enough, and man is not faithful. लेकिन मनुष्य जो हमेशा से उसका शुक्रगुजार नहीं हुआ, धन्यवादी नहीं हुआ। God always wanted to stay with man. परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि वो अपने मनुष्यों के साथ रहे। He made man so that there is a constant fellowship between God and us. उसने मनुष्य को बनाया था कि वो लगातार परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करे। In the heaven, when he was God, Almighty God, he always talked to people, he talked to prophets, and he talks to Adam and Eve as long as the sin did not prevail. जब देखिए पुराने नियम में वो आत्मा में था तो उसने हमेशा अपने नबियों से बातें की है, आदम हवा से बातें की है। And even though sin had come in this world, जबकि जब पाप भी इस संसार में आ गया, then God sent his prophets. तो परमेश्वर ने अपने नबी भेजे, And he filled those prophets with his spirit. और उसने अपने नबियों को अपने आत्मा से भरा, And the prophets spoke inspired by the Spirit of God. और नबियों ने वही बोला जो पवित्र आत्मा में मसा होके प्रभु ने So दिया। what they spoke was the word of God. जो बोला वो परमेश्वर का वचन था। So God is not leaving us without any father, without any connection. इसीलिए परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, He kept on speaking to us. वो लगातार हमसे बात करता रहा। We have read in the book of Hebrews हम इब्रानियों की किताब में भी पढ़ते हैं where it says that God has spoken to us through many prophets in many ways, and in the last days he has spoken to us through his son Jesus Christ. जहाँ लिखा है कि उसने अपने नबियों के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा और फिर अपने आखिर में पुत्र के द्वारा बातें की। Man wants to run away from God many times because of sin. मनुष्य हमेशा परमेश्वर से भागा है गुनाहों के कारण।
whenever we make mistake, whenever we commit fault or a sin, we want to run away from God. जब भी हम कोई पाप और गुनाह करते हैं परमेश्वर से भागते हैं, Because the sin comes because of the evil spirit of devil. क्योंकि पाप आया, क्योंकि वहाँ शैतान है, बुरा आत्मा है। Or devil always wants to show us not God, but devil want to show us our sin. परमेश्वर तो कभी नहीं दिखाता, लेकिन शैतान हमेशा दिखाता हमारे गुनाह। Devil does not want to show God to us. पर शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर हमें देखे, हम परमेश्वर को देखें। He wants to hide the God and deceive us, and he wants to show another side of the God, which is sin. वो परमेश्वर को हमेशा छुपाना चाहता है, बल्कि अपने तरीके से एक नकली चीज जो परमेश्वर है वो दिखाता है। That is why he is against God. इसलिए परमेश्वर के खिलाफ है। That is why he is deceiving, thinking, telling us that he is God, but he is not God. इसीलिए वो हमें धोखा देता है, भरमाता है, उन चीजों को खुदा बताता है जो होती नहीं। But God knows his people before the foundation of the world. लेकिन प्रभु भी अपने लोगों को इस संसार बनने से पहले ही जानता है। God has not designed them, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि पहले से ही सब कुछ डिजाइन किया था उनका, but God knows the choice these people will make. लेकिन प्रभु ये जानता था कि कौन लोग कैसा फैसला लेंगे। And those who make the choice for God, God will make sure that they cannot go to hell. और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा जरिया बनाया कि वो नरक ना जाएं, But God knows that they will remain faithful until death. लेकिन वो जानता था कि वो अंत तक जो है ईमानदार रहेंगे। God knows they will run their race very well. प्रभु जानता था वो अपनी दौड़ ईमानदारी से लोग पूरा करेंगे। That is what we are expected to do today. यही जो उम्मीद है हम आज भी रखते हैं। So we have seen the character of God is that God made this creation of mankind, and everything he made in creation was for the mankind to enjoy, but because God loves us and God wants to stay close to us. तो हम इससे जानते हैं कि परमेश्वर ने ये सारी संसार की रचना मनुष्य के लिए बनाई थी, मनुष्य के आनंद करने के लिए बनाई थी। He told the first man, enjoy this, what I have made here, and be fruitful and multiply and enjoy everything I have made for you. प्रभु ने इसलिए आदम को कहा था कि ये सारी चीजें मैं तुम्हारे अधीन करता हूँ, इनका आनंद मनाओ, आगे बढ़ो, बढ़ो, आशीष पाओ। Because God is holy and pure, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो है पवित्र है, he cannot see the sin. He cannot tolerate sin. ना तो वो गुनाह देख सकता है, ना बर्दाश्त करता है। That is why the man was cut off because of the sin from God. और मनुष्य परमेश्वर से इसलिए अलग हुआ क्योंकि गुनाह आया। And then since everything that was born from the human being was born in sin. इसीलिए उसके बाद जो भी मनुष्य पैदा हुआ वो गुनाह में हुआ। But God made a way for us to come out of the sin. लेकिन प्रभु ने एक रास्ता बनाया कि हम उन गुनाहों से बाहर आ जाएं। God had taken us out from the Garden of Eden. प्रभु परमेश्वर ने वो बाग अदन में रखे and God put security so that man should not eat from the tree of life. परमेश्वर ने वहाँ सिक्योरिटी लगाई कि मनुष्य वहाँ पहुँच ना पाए, Because the man is in fallen condition. क्योंकि मनुष्य जो था वो गिर गया था पाप में। And if man will eat from the tree of life, the tree of eternity, the tree of eternal life, then man can never be saved. क्योंकि मनुष्य अगर उस जीवन के पेट से खा जाता तो वो फिर पाप ना करता। Sister Mary, can you please switch off your mic? Your mic is on, Sister Mary, please. Sister Mary, अगर आप हमारी आवाज सुन रही हैं तो प्लीज अपना माइक स्विच ऑफ कर दें, आपका माइक ऑन है। I think she cannot hear us, but her mic is on. Okay, thank you, sister. God bless you. Because sometimes it can disturb. Thank you. So God wanted that we should
not go to hell. तो परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि हम मनुष्य जो है वो नरक में ना जाए, So he stopped us going to touch the tree of life. इसलिए उसने हमें रोक दिया कि हम उस जीवन के वृक्ष के पास ना जा पाए, But not for all times. लेकिन हमेशा के लिए नहीं। There is a time एक समय आया है when we will do our life very well with the Lord. जब हमारा जीवन प्रभु के साथ अच्छा हुआ। It says in the book of Revelation, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, those who will remain faithful until death, जो अंत तक मृत्यु तक ईमानदार रहेंगे, he will allow us to go and eat from the tree of life. उन्हें ही उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का अवसर मिलेगा। So because of his love, he stopped us. तो उसने प्रेम के खातिर हमें रोका, He did not stop us because he hates us. इसलिए इसने रोका था कि वो हमसे कहीं नफरत करता है, Because he knows if we will go and eat, then we will all die in our sin for all time. क्योंकि वो जानता था अगर उस वक्त हम उस जीवन के पेट के पास चले जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। But he is a loving God. वो प्रेम करने वाला प्रभु है, At the same time, he is a just God. और वो वहीं पर मौके पे रहने वाला प्रभु है। He wants to be a good judge. वो एक अच्छा न्याय करने वाला प्रभु है। He wants to separate the light and the darkness. उसने अंधेरे को रोशनी से अलग किया। He doesn't like darkness. वो अंधेरे को पसंद नहीं करता। He is light. वो रोशनी है, And those who are in him will also shine light. जो उसमें है वो भी रोशनी की तरह चमकते हैं। So this is our duty to stay with the Lord, to allow him to come in our life, to have fellowship with him. तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे अपने जीवन में आने दें और उसके साथ संगति करें। We read in the book of Revelation, when he's talking to the Laodicean church, हम जब प्रकाशित वाक्य में लदोकिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, we know that Jesus is standing outside the door and knocking, and he wants to come in. जहाँ लिखा है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा खड़खड़ाता हूँ, And I want to come in. मैं अंदर आना चाहता हूँ। And if anybody will open, कोई भी अगर उस द्वार को खोलेगा, the person has to open. जो भी खोलेगा, It is you and I who have to open for Jesus. ये आप और मैं हूँ जिसने खोलना है वो द्वार। He has given that authority to us to open the door for him. उसने हमें ये पावर अधिकार दिया है खोलने का। He says, if anybody will open for me, I will come inside and I will have supper with him. उसने कहा कि जो कोई भी द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आके भोजन करूंगा। He is so loving God. वो कितना प्रेम वाला प्रभु है। He is not simply ordering us. वो कोई हुक्म नहीं दे रहा, He is not breaking the door. वो दरवाजा तोड़ नहीं रहा। He is a spirit. He can enter the door without the door. वो तो आत्मा है, वो चाहे तो वो बंद द्वार के पर भी घुस सकता है अंदर। He can go through the walls. वो दीवारों के अंदर भी घुस सकता है। But he is gentle. पर वो देखिए एक जो भद्र परमेश्वर है। He says, I am knocking. मैं को कह रहा है मैं खटखटा रहा हूँ, Please open. कृपया खोलें। If you open, I will come. अगर तुम खोलोगे मैं अंदर आऊंगा, If you don't open, I will go away. नहीं खोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। But then you will die in your sins. लेकिन तब तुम अपने गुनाहों में मरोगे। We cannot blame God for our spiritual death. तो हम अपनी आत्मिक मौत के कारण प्रभु को दोषी नहीं ठहरा सकते। We cannot blame God for us going to hell. हम प्रभु को दोषी नहीं ठहरा सकते कि अगर नरक जा रहे हैं। We have to blame ourselves. हमें अपने आप को दोषी ठहराना है। So we have to correct ourselves. हमें अपने आप को ठीक करना है। God is always ready to have fellowship with us. परमेश्वर हमेशा तैयार है हमारे साथ संगति के लिए। We know in Genesis chapter 7, हम उत्पत्ति 7 में जानते हैं, when God destroyed the world with water,
परमेश्वर ने जब सारा संसार पानी से बर्बाद किया, but God gave them enough chance. लेकिन परमेश्वर ने फिर भी वो मौका दिया। He sent one prophet whose name was Noah. उसने अपना एक नबी भेजा जिसका नाम नूह था। God knew this man will listen to my voice. प्रभु जानता था कि ये व्यक्ति मेरी आवाज सुनेगा। He is faithful and righteous. वो धर्मी था और ईमानदार था। He will do what I want him to do. वो वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। And Noah did exactly as God told him to do. और नूह ने सिर्फ वही किया जो परमेश्वर ने बोला, Because God knew this man is a righteous man. क्योंकि प्रभु जानता था कि ये व्यक्ति धर्मी है। God knows us whether we are going to be righteous or not righteous. प्रभु हमारे सब के बारे में जानता है कि हम धर्मी हैं कि अधर्मी हैं। He is not pushing us for heaven or for hell. वो कभी भी हम पर दबाव नहीं बनाता स्वर्ग जाने का या नरक जाने का। He is a very gentle God. वो बहुत ही भद्र परमेश्वर है। It is the devil who is evil. He will push us and push us and push us into wrong things. ये शैतान है जो हमें लगातार दबाव बनाता रहता है गलत रास्ते पर। He comes with so many physical attractions so that we should fall. वो बहुत सारी संसारिक लालचों को लेकर आता है कि हम गिर जाएं। God does not deceive us. परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देता। God is not cunning. परमेश्वर हमें कभी नहीं भरमाता। God is not dishonest and cheating. परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देता। He is holy and loving God. वो बड़ा पवित्र प्रेम करने वाला परमेश्वर है। He gave enough warning to the whole world that I am going to destroy you. उसने इस संसार को बहुत बार चेतावनी दी कि मैं संसार खत्म करने वाला हूँ। And he put a man in front of them to make an ark so that anyone who will come in the ark will be saved. उसने अपने नबी के द्वारा वो किश्ती बनाई कि जो कोई भी उस किश्ती के अंदर आ जाएगा बच जाएगा। But God was knowing that who is going to come. लेकिन प्रभु ये जानता था कि कौन आएगा उसके अंदर। He knew that only the Noah, his 3 sons and their wife and some animals and other creatures will come. वो जानता था कि नूह, उसके पुत्र और उसकी पत्नी और कुछ जानवर आएंगे। But God gave the opportunity to everybody. लेकिन परमेश्वर ने मौका सबको दिया। So nobody could say you did not allow me to come there. तो कोई नहीं कह सकता कि प्रभु तुमने मौका नहीं दिया। Bible does not say anywhere that only so many people can enter this ark because this is very small and you people cannot enter. और ये बाइबल में नहीं लिखा कि बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन किश्ती छोटी थी इसलिए नहीं आ पाए। We know that God gave a size and measurement for Noah to make an ark. हालांकि प्रभु ने ही नूह को उस किश्ती का सारा साइज दिया था। That measurement is the pattern of God. जो भी उस किश्ती की बनतर थी, साइज था, वो परमेश्वर ने दिया था। And he gave them the size. He made Noah the size, gave him the size. वो परमेश्वर ने दिया था, नूह उस साइज को जानता था। Because God knew that this size will fit for everybody who want to come in. क्योंकि प्रभु पहले से ही जानता था कि ये कितने लोग आएंगे और उनके लिए ये साइज ठीक रहेगा। There may be many people who must be laughing on Noah. You are making an ark only this much long and this much tall and this much wide. How do you think all of us will come in? हालांकि बहुत सारे लोग उस पर हंसे कि तुमने ये नूह किश्ती किस साइज की बनाई है और इसमें किस तरह सभी आएंगे। But they should ask a question to themselves. लेकिन उनको खुद को सवाल ये पूछना चाहिए, Why are they worried about the whole world? Why they cannot go? कि वो सारे संसार की चिंता क्यों ले रहे हैं, कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं जा रहे अंदर। If they wanted to go, they could go. एक तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। The man of God was preaching for many years. और प्रभु के दास ने कई साल प्रचार किया। They did not listen to the voice of God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आवाज को नहीं सुना। They must be making their own excuses.
उन्होंने अपने अपने बहाने बताए। They must be having their own reasons about their family, their job, their property, there's so many things. उनके अपने अपने बहाने थे कि मेरा परिवार है, मेरा काम धंधा है, मेरा घर है, मेरे खेत हैं। And when the time came, God shut the door. लेकिन जब समय आया तो परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। Then they must be crying, please open, now the rain has started. तब जाके वो चिल्लाने लगे कि नुआ दरवाजा खोलो क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी Because they were thinking that it has never rained on this earth. So this is a big joke that this earth will go underwater. क्योंकि उनको लगा ये सबसे बड़ा मजाक है कि आसमान से पानी आएगा जो आज तक कभी नहीं आया था। Many people today are making a mockery. आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मजाक बनाते हैं। Bible says before the coming of the Lord Jesus Christ, many scoffers will come who will laugh that Jesus has not come for 2000 years. So when do you think he is coming? बाइबल में लिखा है कि प्रभु की आमद से पहले भी बहुत से ठट्ठा करने वाले आएंगे जो कहेंगे कि 2000 साल हो गए हैं अभी तक तो प्रभु आया नहीं। Where is the promise of his coming? कहाँ गया उसके वापिस आने का वादा? They were asking Noah, where is the promise of the rain? वो नुआ से पूछते रहे थे कि कहाँ है वो बारिश जो आनी थी। But God has said it has to happen. लेकिन प्रभु ने जो रखा था वो हुआ। Word of God is God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। God is in his word परमेश्वर अपने वचन में है। and God cannot lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। And it happened. और ये होता है। And they were destroyed. और फिर खत्म होता है। Because God shut the door. क्योंकि परमेश्वर ने द्वार बंद किया था। It was not Noah who shut the door. ये नूह नहीं था कि जिसने द्वार बंद किया था। It is God who will take away the opportunity one day for anybody. Thereafter, there will be no repentance and no salvation. ये परमेश्वर था जिसने मुकर्रर समय वो दिन ठहराया था तौबा का। उसके बाद वो सब बंद हो गया। There is no prophet, there is no pastor, there is no man of God who can open the door for us. उसके बाद कोई भी नबी, कोई भी पास्टर नहीं था जो द्वार खोल सके। Nobody can open the door which God closes. जो द्वार प्रभु बंद कर देता है उसे कोई नहीं खोल सकता। Likewise, nobody can close the door which God opens. जिस तरह प्रभु ने जो द्वार बंद कर दिया था उसे कोई नहीं खोल पाया। In the life of many of us, और हमारे बहुत सारों के जीवन में, in the life of many believers amongst us, we have the evidence and witness. हमारे बीच में बहुत सारे विश्वासियों के जीवन हैं जो हम जानते हैं। God has opened the doors of blessings in their life. प्रभु परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वार को खोलकर बहुत सारी आशीषें बरकतें दी। Devil always wanted to shut their door. शैतान हमेशा चाहता था कि वो द्वार बंद कर दे। 1 minute, brother, 1 minute, please. नो प्रॉब्लम। Hello. Thank you. So God knows who is going to come in and who is not going to come in. तो प्रभु जानता था कि कौन किश्ती के अंदर आने जा रहा है, कौन नहीं आने जा रहा। Because of this, इसके कारण the prophet did his job perfectly. नबी ने अपना कार्य बिल्कुल सही तरीके से किया। Prophet was not responsible for the destruction of the world. नबी कभी भी कारण नहीं होता इस संसार की बर्बादी का। The prophet always brings the message and works as a messenger. नबी हमेशा ही जो परमेश्वर का कलाम होता है, संदेश होता है, वही देता है। Prophet who is sent by God will bring the message from God.
जो परमेश्वर का ठहराया नबी होता है वो परमेश्वर का संदेश लेकर ही देता है, and that message can never go wrong. और वो वाला संदेश कभी गलत नहीं होगा। Now, because the Noah, the prophet, and his family was inside the ark, अब नोआ और उसका परिवार जो उस किश्ती के अंदर था, they were having fellowship with God वो परमेश्वर के साथ संगति में थे, because God was in the ark. क्योंकि परमेश्वर खुद उस किश्ती के अंदर था। That is why God told Noah in Genesis chapter 7 and verse 1, इसीलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति में 7:1 में नोआ को बोला, go into the ark. परमेश्वर ने कहा किश्ती के अंदर जा। In Hindi language, there is a error in the translation. जो हिंदी की ट्रांसलेशन है उसमें गलती है। In Hindi, it says go into the ark. हिंदी में लिखा हुआ है किश्ती के अंदर जा। In the correct translation is come into the ark. जो सही ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है किश्ती के अंदर आ। Because God is calling Noah, his man, to himself, towards himself. क्योंकि परमेश्वर खुद जो था वो नोआ को बुला रहा था किश्ती के अंदर। The ark of the Noah is a type of shelter, is a type of tent, is a type of tabernacle where God lives. जो किश्ती थी उस वक्त वो एक तरह का परमेश्वर का घर था, परमेश्वर का तंबू था, परमेश्वर का मंदिर था। So many of the brothers, they have corrected this understanding and this translation that in Hindi God does not mean that Noah should go into the ark. तो बहुत सारे भाई बहन अपनी बाइबल में ये गलती ठीक कर लें कि जहाँ लिखा है किश्ती में जा, परमेश्वर खुद किश्ती के अंदर था। वो कह रहा था नोआ किश्ती के अंदर आ। God is not sending Noah away from him. परमेश्वर ने ये थोड़ी कहा कि तू मेरे से दूर जा। God is trying to call Noah into the place where God is present. परमेश्वर ने कहा कि नोआ मेरे पास आ और मैं कहाँ हूँ किश्ती के अंदर। God speaks to us from his word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। We in the New Testament, we are supposed to be in the body of Christ. अब नए नियम में हम मानते हैं कि जैसे हम मसीह जो था शरीर में है, And we must belong to the body of Christ. और जो हम हैं हम मसीह का बदन हैं। And we read in the book of Acts और हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं that Lord added the saved people to the church, which is his body. और वहाँ प्रेरितों के काम में लिखा है जो लोग प्रेरितों के कलाम के द्वारा तौबा करते थे वो कलीसिया में परमेश्वर उनको जोड़ता गया। The Lord is in his body. परमेश्वर अपने बदन में है। He is the head of the body. वो उस बदन का सर है। We are the body. हम शरीर हैं। We cannot be away from the body. हम शरीर से अलग नहीं हो सकते। God will never say go away from church. प्रभु ने ये नहीं कहा कि कलीसिया से दूर जा। He says, I will add you to my church. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी कलीसिया के अंदर लाऊंगा, जोड़ूंगा। God wants to make us the members of his family. परमेश्वर चाहता है कि हम परिवार का हिस्सा बने, so that we live with him for always. ताकि हम हमेशा उसके साथ रहें। Before we will finish we will read one scripture here. अब हम इससे पहले इस सभा को खत्म करें, हम एक कलाम पढ़ने जा रहे हैं। A few verses we will read, which is going along with the subject that we are talking about. हम कुछ आयतें पढ़ेंगे जो आज के संदेश के साथ जुड़ती हैं। Which is John chapter 14. जो पहले हम यूहन्ना की अंजील निकालेंगे और उसका 14 अध्याय। We know in this chapter Jesus is giving many promises. हम जानते हैं इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे वादे किए हैं। And those promises are for our peace of mind.
and our assurance. और ये वादे जो हैं ये हमें मानसिक तौर पर शांति देते हैं। And these are the promises directly by the mouth of Jesus Christ. और ये वादे जो हैं ये सीधा प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हैं। We have to believe them. हमको इस पर ईमान रखना है। If we believe these promises, और अगर हम इस पर ईमान रखते हैं these promises will be fulfilled in our life. तो ये वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे। And the blessings of those promises we will receive and we will have eternal life. तो ये सारी आशीषें हम प्राप्त करेंगे, हमें मिलेंगी। Now in this chapter, और इस अध्याय में this is before his crucifixion, Jesus is talking to his disciples. इससे पहले कि प्रभु सलीब पर चढ़ाया जाता उसने अपने चेलों से, अपने लोगों से बातें की। And he is giving them all assurances of his coming back. उसने वादे दिए अपनी दूसरी आमद के। But before that, he is telling them that he need to go. लेकिन उससे पहले उसने कहा कि मेरा जाना जरूरी है। Because he is here on earth for a purpose for some time. क्योंकि वो इस संसार में, इस धरती पर किसी मकसद के लिए, कुछ समय के लिए आया था। So he has to fulfill. और उसे पूरा करना था। Father has sent the Son into this world to complete a purpose. पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में मकसद को पूरा करने के लिए भेजा। The Almighty God, the God Yahweh, the God of Jacob and Isaac and Abraham was called God in the Old Testament. ये पुराने नियम में वो यहोवा है, वो परमेश्वर है, वो इब्रानियों का यहोवा परमेश्वर है। He was Elohim, the Almighty God. वो सबसे बड़ा परमेश्वर रचेता है, वो इलोहिम है। But his word was always in him and with him. और परंतु उसका वचन हमेशा उसके अंदर है, उसके साथ है। But there was a time, what we read in 2000 years ago, that his word, which was with him and in him, that word became flesh and was called the Son of God, whose name is Jesus. लेकिन 2000 साल पहले जो उसका वचन परमेश्वर का उसके अंदर था, उसके साथ था, वो शरीर लेकर आ गया। He was not called a son of God in the Old Testament ever. पुराने नियम में कहीं भी पुत्र का जिक्र नहीं है। There was no son mentioned in the heaven. ना ही स्वर्ग में कभी जिक्र हुआ पुत्र का पुराने नियम में। In the Old Testament there was no son mentioned. पुराने नियम में पुत्र का जिक्र नहीं है। Even when he was creating the heavens and the earth, it was said, in the beginning was the word. जब उसने सारा संसार बनाया तब भी लिखा है कि आदि में वचन था। But later on the word became flesh. लेकिन बाद में वो वचन जो था वो देदारी हुआ। When the word becomes flesh, that word in the flesh, in the form of the flesh, that is called son. जो वचन ने दे ली, शरीर लिया, वो शरीर प्रभु यीशु मसीह कहलाया। And there was a prophecy in the book of Isaiah by prophet Isaiah. यही भविष्यवाणी यशाया नबी के द्वारा हुई। And the prophet Isaiah had given a prophecy that a virgin will conceive. और यशाया ने भविष्यवाणी की कि कुंवारी गर्भवती होगी। And she will have a son. वो एक पुत्र जनेगी। And he will be Emmanuel. उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। That means Emmanuel is not a physical name. The name of the physical name of the son was Jesus, but it's a relationship name which is Emmanuel. जो उसका नाम था वो यीशु था, लेकिन जो इम्मानुएल का अर्थ था स्वर्गीय, वो था परमेश्वर हमारे साथ है। The God is going to dwell with us. God is going to be with the man. That is why he is called Emmanuel. परमेश्वर हमारे अंदर आना चाहता था, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता था।
Emmanuel is a relationship, it is not a proper noun. ये इमैनुअल जो नाम था ये एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। This was told as a prophecy by Isaiah before he was born, before Jesus was born. तो ये यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी हो गई थी, इससे पहले वो प्रभु जन्म लेता। Because God was telling through prophet Isaiah that when this son will be born, who will be this son? He will be the son, the God with the mankind. तो परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी कर दी थी कि पुत्र जन्म लेगा, वो कौन होगा? God is a perfect God. He doesn't keep us in dark. परमेश्वर एक संपूर्ण परमेश्वर है, वो कभी अंधेरे में नहीं रखता। He is going one step ahead, that now he is going to come and live with the mankind. उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर वही परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहने आया। And that same, the same Son, the same God who was the Word of God, he is giving this promise in John chapter 14. और उसी परमेश्वर ने वो जो वादा दिया यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हम। Now when the Son is born, और जब पुत्र ने जन्म लिया, the Son has started talking to God as Father. और उसने पुत्र ने पिता के रूप में बातें की। But now he has a relationship. पर अब जो है, अब उसका हमारे साथ रिश्ता है। God has become Father परमेश्वर पिता है, because a son is born on earth, क्योंकि पुत्र ने जन्म लिया, and through him उसके द्वारा we can also become sons and daughters of God. हम भी उसके बेटे बेटियां बन गए। 1 Timothy 2:5 says there is one mediator, that is man Jesus Christ. और पहला तिमोथियस में भी लिखा है कि सिर्फ एक ही बिचवाई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। So that if we have to have our relationship back to our God and he should become our father, we can call him father, then we must be son and daughter. तो अगर हमने उसके साथ रिश्ता जोड़ना है तो हमें उसको पिता मानना होगा। That is why we simply don't call him God. तो सिर्फ हम उसको परमेश्वर परमेश्वर कह के नहीं चल सकते। We call him Father. हमें उसको पिता भी कहना है। He has given us the right to become his sons and daughters so that we can call him Father. उसने हमें ये अधिकार दे दिया कि हम अब उसके बेटे बेटियां हैं। This authority has come through his son Jesus Christ. और ये जो अधिकार हमें मिला, ये उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। He is the begotten son. वो एक लौता पुत्र है। We are sons and daughters by adoption. हम उसके गोद लिए हुए बेटे बेटियां हैं। And Jesus is telling them that he is going to come back. उसने कहा कि वो वापस आएगा। That God who took the form of flesh, human flesh, जो परमेश्वर ने शरीर लिया, the Spirit God, the Word God, आत्मा वाला वचन वाला प्रभु, he is giving a promise to his disciples. उसने अपने चेलों को वादा दिया। After completing his work in the human body, जब उसने शरीर में अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी पूरी निभा ली, then he has to go. अब उसको जाना था वापस। But he will come back पर वो वापस आएगा so that he can take them where he lives. तो ताकि जहाँ वो रहता है हम भी वहाँ रहें। This message is for us. ये संदेश हमारे लिए है। If we are the followers of Christ, Jesus is speaking this to us. अगर हम मसीह के यीशु मसीह के चेले हैं, उसके पीछे चलने वाले, तो वो हमसे बात कर रहा है। In verse 21 of John chapter 14, यूहन्ना 14 के हम 21 में जब देखते हैं, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. यूहन्ना 14 और उसकी 21 आयत, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है
उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। Amen. 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 Now see, he is very, very clear that how do we get connected to Father? That is by keeping the commandments that he has given us. तो यहाँ देखिए प्रभु ने कितना साफ साफ बता दिया कि किस तरह हम उसके साथ जुड़े रह सकते हैं, वो है उसकी आज्ञाओं को मानकर। And we know in these verses, in the verse below, Jesus is talking to Judas. तो हम जानते हैं कि ये जो प्रभु बोल रहा है निचली आयत में, वो पता लगता है कि वो यहूदा इस्करियोती जो था वो नहीं था उसमें। And we know that this man Judas is now affected or influenced by the spirit of the devil. और हम जानते हैं कि यहूदा जो था वो शैतान के भरमाए में आ गया था, बहकावे में। And devil, this is the easiest way to understand the spirit of devil. The spirit of devil will always ask the question mark about the word of God. तो हम जहाँ इससे पता चलता है कि शैतान जो होता है वो हमेशा परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाता है, सवाल करता है। And now you see, listening to this in verse 21, in verse 22, what Judas is talking. अब देखिए 21 आयत में प्रभु वचन दे रहा है, 22 आयत में यहूदा देखिए क्या कह रहा है। Now here, this is not Judas Iscariot. This is another Judas. ये दूसरा यहूदा है। And so we should not confuse with Judas Iscariot here. तो यहाँ हम गड़बड़ी में न जाएं कि वो यहूदा वाला है ये। There was another disciple who was also Judas. यहाँ एक और चेला था जो उसका नाम यहूदा था। But again, he is asking a question. उसने सवाल पूछा, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किए चाहता है और संसार पर नहीं? Now Jesus understood the question. अब प्रभु उसका सवाल समझ गया। In verse 23, Jesus is giving the answer. अब 23 आयत में प्रभु उत्तर दे रहा है उसको। This is the answer we all need to know. ये जो उत्तर प्रभु ने दिया हम सबको जानना समझना है। Jesus answered and said to him, प्रभु ने 23 आयत में उत्तर दिया, If anyone loves me and he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। See the promise of God here. अब देखिए परमेश्वर का वादा देखिए यहाँ। If we love him, we will keep his commandments. अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसका वचन मानेंगे। And where are his commandments? और उसकी कहाँ है जो हुक्म है वचन? In his word. उसके वचन में। In this Bible. बाइबल में। So if we follow the commandments given in his word in this Bible, अगर हम जो बाइबल में परमेश्वर ने हमें वचन दिए, हुक्म दिए हैं, अगर उसको मानेंगे, then he says, my Father will love him. तब मेरा पिता तुमसे प्रेम रखेगा। Who is the Father? पिता कौन? Father is God. पिता जो है वो परमेश्वर है। And God is the Spirit. और परमेश्वर जो है वो आत्मा है। So God, who is the Spirit, will love us if we follow the commandments in his word. तो पिता जो है आत्मा है, हमसे प्रेम रखेगा अगर हम उसके वचन को मानेंगे। In 24th verse, Jesus is saying 24 आयत में प्रभु ने कहा that the Father has sent him. In which In verse? verse 24, he says
He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. 24 आयत में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं, मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। So here Jesus was promising them in जहाँ verse 23, यहाँ 23 आयत में प्रभु जो है वो उनको वचन दे रहा है, वादे दे रहा है if you keep my commandments, कि अगर तुम मेरे वचन को मानोगे then me and the Father will come and live with you. तो मैं और मेरा पिता तुम्हारे अंदर आएंगे, वास करेंगे। See the promise. वादा देखें। So in order to keep the fellowship with God, तो परमेश्वर के साथ संगति रखना, we must love him and do his commandments. तो हमें उससे प्रेम रखना है और उसके वचन को मानना है। By this, इसलिए he will come and live with us. वो हमारे अंदर आके वास करेंगे। How he will live with us? किस तरह? The Spirit of God. Jesus says in the verses, 1 or 2 verses below, the helper the Father will send in the form of the Holy Spirit, he will come and live in you. इसके नीचे प्रभु ने कहा कि मेरा पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। In the Old Testament, पुराने नियम में we know there were physical temples. हम जानते हैं कि एक सांसारिक तौर पर एक मंदिर बनाया गया। There were 2 times the temple of God was made, 2 बार बनाया गया, and both were destroyed. दोनों बार टूटा। And Jesus also showed them a temple in Matthew 24. और प्रभु ने मत्ती 24 में भी उस मंदिर के बारे में बोला। The second temple, and he said, this will also be destroyed. तो प्रभु ने कहा कि ये दूसरा भी ढा दिया जाएगा। Because under the New Testament, क्योंकि नए नियम के मुताबिक God is dealing with us only spiritually. प्रभु हमारे साथ आत्मिक तौर पर रिश्ता रखता है। Because the whole matter is spiritual. क्योंकि पूरा जो मकसद है वो आत्मिक है। Under the law, under the Old Testament, there were physical things through which God was trying to teach them. तो प्रभु परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी चीजें वचन सिखाए हैं। When Israel was taken out from the bondage of Egypt, जब इज़राइल जो था गुलामी से बाहर निकला and they were traveling towards the promised land, and Moses was the leader, जब मूसा लीडर था और वो सफर कर रहे थे and the pillar of fire was guiding them, और परमेश्वर जो था वो पिलर के रूप में अगुवाई कर रहा था। and we know in the book of Leviticus 23, लेवी व्यवस्था में हम जब पढ़ते हैं we read there तो जहाँ हम पढ़ते हैं that God had asked them to make some tents. तो प्रभु ने कहा कि मेरे लिए वो तुम तंबू बनाओ। Some tents you should live, and you should give thanksgiving and worship and fellowship in those tents. तो प्रभु ने कहा उस तंबू में तुम ऑफरिंग चढ़ाओ, संगति करो, आराधना करो मेरी। But those tents were temporary. पर वो तंबू जो थे वो ज्यादा समय के लिए नहीं थे। But they were made with the branches of the trees and twigs and the leaves, so that they could take shelter there and worship God and thank God and keep moving. वो पेड़ों की डालियां और पत्तियों के द्वारा बनाते थे और संगति करते थे। Even today, the Jews in many countries of the world and in Israel, they have these feasts. And this feast is called the Feast of Tabernacle. इसीलिए सारे संसार में जो यहूदी है वो आज भी इसी तरह मनाते हैं, जिसको वो फीस्ट ऑफ टबरनेकल कहते हैं। Tabernacle means staying with, to live in a house.
टैबरनेकल का मतलब कि एक साथ रहना, इकट्ठे रहना। And also those temples were also called the tabernacle of God. और वो जो था वो परमेश्वर के भी मंदिर कहलाया। And those temples also used to have holiest of holy in the third court. और इसीलिए जो तीसरा हिस्सा था वो अति पवित्र कहलाया। And that is where the Ark of the Covenant was kept. यहाँ पर परमेश्वर का आयत का संदूक रखा गया। And in those physical temples, in the holiest of holy, the presence of God, the Shekinah glory of God was felt. इसीलिए परमेश्वर का जलाल वहाँ शकीना जो जलाल था उतर आता था। All this exercise was pointing to something more spiritual in future. और जो था वो आने वाले भविष्य में और ज़्यादा उतरना था जलाल। This was pointing to the spiritual side of the tabernacle, the spiritual side of the temple that God was going to bring for his people. तो ये जो था प्रभु बता रहा था कि आने वाले समय में आत्मिक रूप में ये तंबू बनेगा, आत्मिक रूप में ये टबरनेकल बनेगी। And now where is this temple today for us Christians? आज मसीहों के लिए वो तंबू कहाँ है? That temple is not the church building. वो जो मंदिर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं, चर्च बिल्डिंग नहीं है। God does not live in the buildings made with hands. प्रभु हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। So where is the temple today? तो आज कहाँ है मंदिर? We will read from the Bible to get the answer. हम बाइबल में जाते हैं उत्तर के लिए। And we will go to the verses 9, 10 and 11. In which book? 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में हम जाते हैं। 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। See, our subject is that God wants to live with the mankind. This is how we started today's subject. जिस तरह हमने आज शुरुआत की जिस विषय से कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, He wants to live with us. वो हमारे साथ रहना चाहता है। Under the Old Testament, पुराने नियम में there were physical temples and tabernacles. सांसारिक तंबू था, And inside the tabernacle, there was a place where they believed that God lives inside this in the holiest of holy. जो उसके अंदर अति पवित्र स्थान था, वहाँ परमेश्वर का जलाल था। In the synagogue, it was called the house of God. जो बाद में सिनागोग बना वो परमेश्वर का घर कहलाया। And today, where is that synagogue? तो आज वो सिनागोग कहाँ है? We have to know from the word of God under the New Testament. नए नियम के मुताबिक हम जानते हैं 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत। Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? And verse 17, if anyone defies the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। Under the Old Testament, तो पुराने the followers of God, those who were God's people, जो पुराने नियम में के मुताबिक जो प्रभु के लोग थे, under the law, they were instructed to make the temples. तो परमेश्वर के शरा के मुताबिक उन्होंने वो टबरनेकल बनानी थी। Before the temple was made, they were supposed to make tents. तो इससे पहले वो उन्होंने एक वो टेंट वाली तंबू बनाना था। And they were all things were temporary.
तो ये सब कुछ जो हम जानते हैं टेम्परेरी थी। These two big temples which were made, one was made before Christ and one was in the time of Christ, which was also destroyed in AD 70. Both these temples, big temples, beautiful temples, they were destroyed. तो जो भी मसीह के पहले आने से पहले मसीह के समय में दो जो मंदिर बने थे वो दोनों ढा दिए गए थे। They were all destroyed. वो सब ढा दिए गए। They were not the permanent solution. जो परमानेंट नहीं था। But now comes the permanent solution. लेकिन अब हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन है। And that is और वो है our body. हमारा शरीर। We have just now read a verse from 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. अभी हमने जो है कुरिन्थिया में ये आयतें पढ़ी हैं। He says, don't you know that your body is the temple of God? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? Brothers and sisters, we are living souls. भाई और बहनों, हम एक जिंदा जान हैं। When the spirit is combined and joined with the body, it is a living soul. जब आत्मा इस जान के साथ मिलता है तो हम जीवित प्राणी बनते हैं। And spirit of God lives in this. परमेश्वर का आत्मा यहाँ रहता है। This is the temple of God. ये परमेश्वर का मंदिर है। This is the tabernacle of God. ये परमेश्वर का तंबू है। We have to keep it holy. हमें इसे पवित्र रखना है। If we don't keep it holy, अगर हम नहीं रखते हैं, God will take away His spirit परमेश्वर अपना आत्मा ले जाएगा and we will be destroyed. तो हम बर्बाद हो जाएंगे। Our body and soul both will go to hell. हमारा आत्मा जान सब नरक में जाएगा। God has been very kind. प्रभु दयालु है। He has kept His spirit inside us, in all of us, वो अपना आत्मा हमारे अंदर रखता है। who guides us and teaches us daily. वो हमें गाइड करता है हर रोज। The body of Christ is the spiritual body. तो मसीह का जो शरीर है वो आत्मिक है। And we are the members of that body. हम उस शरीर का हिस्सा हैं। Each member is a living soul. हम सभी जीवित जान हैं। And we all have the Spirit of God. हम सबके पास उसका आत्मा है। And God lives in us. परमेश्वर हमारे साथ रहता है। When Jesus was a physical man on earth, जब प्रभु शरीर में संसार में था, as a son moving on this earth in the human body, पुत्र के रूप में वो इस संसार में था। He was God with us. वो परमेश्वर हमारे साथ था। Then He went and He was glorified and He ascended into heaven and we are waiting for His coming. वो उठाया गया, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। So today that God is in us. तो आज परमेश्वर हमारे साथ है। God above us in heaven as Father. वो स्वर्ग में पिता के रूप में है। God with us on the earth, walking as a human being, was God with us as the Son of God. पुत्र के रूप में वो इस संसार में था। And today He is in His church, in all of us, in all the believers, in all the faithful believers. He is dwelling in us. So His tabernacle is in us. आज वो आत्मा के रूप में हर विश्वासी के अंदर है। So we have to understand आइए हम इसको चीज को समझें। that God who was talking to Adam and Eve in the Garden of Eden, जिस प्रभु ने बाग अदन में आदम और हवा से बात की, that God who was present in the ark of Noah, जो अर्क और नूह के उसमें था, and that God who was in the temples made with hands and the buildings, जो हाथ से बनाए हुए टबरनेकल में था, where is that God living today? आज वो कहाँ है? That God lives inside you and me. आपके मेरे अंदर है। We are the tabernacle of God.
हम उसका मंदिर हैं। And when the Lord will come back on his second coming, जब वो वापस आएगा, and when we will be in the New Jerusalem in the book of Revelation 19:20, जब हम प्रकाशित वाक्य के मुताबिक नए यरूशलेम में आएंगे, Bible says the tabernacle of God will be with men. लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर मनुष्यों के बीच होगा। So see, from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक God is interested to live with us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहता था। He wants always to dwell with the mankind. वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता था। So what is our duty? हमारी जिम्मेदारी क्या है? If we love him, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, if we want him to live with us, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, we have to keep this tabernacle clean. हमें इसे साफ रखना है। Jesus himself was following the Jew traditions. प्रभु ने खुद यहूदी वो पूरा किया। He did not come to destroy the law, but he came to fulfill the law. उसने शरा को थोड़ा नहीं पूरा किया। Jesus took a hunter and he went to the tabernacle where people were doing the trading of birds and animals and the money. उसने चाबुक उठाया और उस मंदिर में जो व्यापार कर रहे थे उन पर चलाया और साफ किया। And he told them and he asked them to get out from there. उसने कहा यहाँ से निकल जाओ, Because he said, this is the house of worship of my God, my उसने Father. उसने कहा ये मेरे पिता का प्रार्थना का स्थान है। You have made it like a business center. तुमने इसे व्यापार बना दिया, You have made it unholy. तुमने अपवित्र कर दिया। So what is Jesus teaching there? प्रभु भी यहाँ क्या शिक्षा दे रहा है? Wherever there is a tabernacle of God, it should be kept holy. जहाँ भी परमेश्वर का मंदिर है वो शुद्ध होना चाहिए। If we go into the old traditions of the Jews, how much pure and how much clean they wanted to keep the temple of God. अगर हम पुराने नियम में जाएं तो देखें वो कितना उसे साफ और शुद्ध रखते थे। Now where is the temple today? आज उसका मंदिर कहाँ है? Where is that tabernacle? आज उसका मंदिर कहाँ है? We have just now read, you and me are the tabernacle. आज भी हमने पढ़ा कि हम उसका मंदिर है। So what is our duty? हमारी जिम्मेदारी क्या है? So that God should be happy and God should live in our tabernacle, we have to keep it clean and we must obey the word of God. तो हमें उसको खुश रखना है, तो हमें साफ रखना है। This is the lesson for us today. आज का ये संदेश था हमारे लिए। God wants to live with us. प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। He created us because he wants to live with us. उसने हमें बनाया क्योंकि साथ रहना चाहता है। But he will only live with us if we love him and keep him happy and do his commandments. वो तभी रहेगा जब हम उसका वचन मानेंगे, उससे प्रेम रखेंगे। He lives in us in the tabernacle of our body. वो हमारे शरीर में रहता है, मंदिर है हम। So if we keep this body clean and pure, अगर हम ये मंदिर साफ रखेंगे then our soul also will be pure. तो हमारी जान भी शुद्ध होगी। Then he will secure and save our body and soul both for eternal life. तो हमारा जान, हमारा आत्मा सुरक्षित रखेगा। But if we don't, अगर नहीं, then God will say that he will destroy the body and the soul both in hell. तो वो हमारा शरीर, हमारी जान नरक में भेजेगा।
So we have to be very careful, brothers and sisters. हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। We cannot do it with our own help. हम अपनी हिम्मत से तो नहीं कर सकते। We have to keep praying for ourselves and for our friends and brothers, sisters, and all the members of the church. हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। And we must obey the word of God वचन पर चलना है। and remain faithful till death. ईमानदार रहना है अंत तक। Only those who are faithful till death, they will receive the reward. जो अंत तक ईमानदार रहेंगे वो इनाम पाएंगे। If I live for 60 or 70 years and after 40 years I give up, then I will not get the reward. अगर मैं इतने साल ईमानदार रहा लेकिन बाद में नहीं रहा तो मैं इनाम नहीं पाऊंगा। I must run my race up to the finishing mark, up to the last round. मुझको लास्ट तक ये रेस पूरी करनी है। So may God bless us. प्रभु आप सबको आशीष दे। We can only do it by His help. हम उसकी मदद के द्वारा कर सकते हैं। No man can help us. कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। No relationship can help us. कोई रिश्ता मदद नहीं कर सकता। Only God can help us through His word, सिर्फ प्रभु हमारी मदद कर सकता है provided we are sincere. जब हम सिंसियर होंगे। So may God bless us. प्रभु आशीष दे। May the Lord keep us. प्रभु बनाए रखे। This is the end of our lesson for today, and thank God for this. प्रभु हमको आशीष दे। Thank you, Brother Jaswinder. God bless you for translation. आमीन आमीन। Amen. This is the time. We have now finished our today's meeting. We will do it with a short prayer, and we will do the prayer with Brother R.K. Joshua. Brother Joshua will close this meeting with a word of prayer, and then our meeting will be over. Thank you. Brother Joshua, over to you. Thank you, brother. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आपके इस महान वचन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। दयावान पिता, जो आप पहले आवाज थे प्रभु, आप पुत्र के रूप में आए मेरे खुदावन, शरीर लेकर प्रभु हमारा उद्धार करने के लिए। प्रभु जी आपकी दया है मेरे खुदावन कि आप अपना सिंहासन छोड़कर प्रभु यीशु के शरीर में प्रभु जी प्रवेश किया आपने और धरती पर रहे। ये आपकी दया है प्रभु। उस परमेश्वर को जिसने किसी ने भी उसको नहीं देखा था मेरे खुदावन, आप पवित्र आत्मा थे मेरे प्रभु, यीशु के प्रति स्वरूप में होकर आप दिखाई दिए। ये आपकी दया है मेरे खुदावन कि हम पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए प्रभु आपने किया। ये आपकी दया है प्रभु जी। इस दया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और हमें सच्चा पवित्र कलाम दिया मेरे खुदावन। हमें प्रभु जी वो अगुवे दिए मेरे खुदावन। प्रभु जी हमारी हिफाजत करें खुदावन, उस दुष्ट से हमें बचाएं मेरे खुदावन। हम सच्चाई और आत्मा से हमेशा आपके पवित्र कलाम में बने रहे मेरे खुदावन। जैसे नबी नूह प्रभु जी उस वचन में सवार होकर खुदावन अपने परिवार समेत प्रभु जी बच गया, वैसे हम भी प्रभु आपके कलाम में ऐसे ही बने रहें और आपके दिए हुए वचन के मुताबिक प्रभु जी आपकी इच्छा को जाने और आपकी इच्छा को हम पूरा करें। सारा आदर जलाल महिमा आपके पवित्र नाम को देता हूँ खुदावन। इस माध्यम से प्रभु जो हम इकट्ठे होकर अलग अलग जगह से प्रभु जी आपकी प्रस्तुति स्तुति विड़ाई में हम जुड़ते हैं मेरे खुदावन। ये आपकी दया है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीहा धन्यवाद पिता। प्रभु जी हमें वो समर्थ दे मेरे खुदावन कि हम आपके वचन पर चलने पाए मेरे खुदावन, और सभी जितनी भी हमारी कमियां कमजोरियां हैं प्रभु जी वो हमसे दूर हो जाएं और सच्चाई रूह जिस्म जान से प्रभु आपकी प्रस्तुति स्तुति वड़ाई और महिमा में बने रहे।
क्योंकि प्रभु जी आपका आना बिल्कुल नजदीक है मेरे खुदावन। हम तैयार पाए जाएं मेरे खुदावन, जब आप आए तो प्रभु जी आपके सामने खड़े होने के योग पाए जाए। ये बख्श दें प्रभु, हमें होने दें मेरे खुदावन कि हम सच्चाई आत्मा से प्रभु जी आपकी प्रस्तुति स्तुति में लगे रहें। कोई भी दुष्ट की रूह हमें भरमाने ना पाए खुदावन। दया करें प्रभु जी, आज के कलाम से हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाए। 30 गुना 60 गुना प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आए। आदर जलाल महिमा आपके पवित्र और समर्थी नाम को देता हूँ। और मैं अपने भाई मैनुअल के लिए और भाई जसविंदर के लिए प्रभु जी दुआ करता हूँ खुदावन कि और वचन से भरे मेरे खुदावन, और प्रभु जी वचन से हम सीख कर प्रभु जी आपकी पूर्ण सच्चाई को जानकर प्रभु आपके लायक बन जाए। और प्रभु जी हम दुल्हन के लिए प्रभु जी तैयार हों। जब आप बादलों पर आए तो खुदावन हमें आप उठा लें मेरे खुदावन। हमारी कमियों को आप दूर करें मेरे खुदा। प्रभु जी आपके वसीला से ही ये दूर हो सकती है मेरे खुदावन। दया करें, सारी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीहा आशीष और बरकत मांगता हूँ आज की मीटिंग के लिए। प्रभु जितनों ने भी प्रभु ये कलाम सुना है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीहा उससे हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाए। प्रभु यीशु मसीहा बहुत सारा फल लेकर आने वाले हैं। आदर जलाल महिमा आपके पवित्र नाम को देता हूँ। आशीष मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen, amen, amen. God bless you, brother. Thank you. And our meeting is over for today. Thank you. Thank God.